Welcome aspirants, welcome to Shirama YT channel on this 1 PYQ a day series. Today is the day of disaster management and that is why I'm here to talk about one previous year question, UPSC Mains 2015 and GS paper 3. It has appeared in GS paper 3. Let's directly jump into our question. सवाल क्या था? This was the question. The frequency of earthquakes appears to have increased in the Indian subcontinent. However, India's preparedness for mitigating their impact has significant gaps. Discuss various aspects. And most importantly, this is for 200 words and 12 and a half marks. 2017 के पहले यूपीएससी मेंस का ये पैटर्न हुआ करता था. So every question will be of 12 and a half marks plus 200 words. So despite of the fact that right now you have either 250 words answer or 150 words answer, we will respect the word limit in this question, इस case, और इसको हम इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. दोबारा सवाल पढ़ते हैं. मेंस का जो पहला थंब रूल है वो ये है, यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. The frequency of earthquakes appears to have increased in the Indian subcontinent. They are not talking about India, Indian subcontinent. Context क्या है? 2015 में ही नेपाल के अंदर एक बहुत ही massive earthquake आया था. That is why they are asking this question. However, India's preparedness for mitigating their impact has significant gaps. Discuss various aspects. A very straightforward question. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया है. तो लाइक ऑलवेज, इफ यू हैव टाइम, वी शुड गो फॉर द टाइम टेस्टेड मेथड, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. स्ट्रक्चर. तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे किसकी कर सकते हैं हम बात. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन टॉक अबाउट. यू कैन सिंपली बिल्ड अपॉन द आर्गुमेंट इटसेल्फ व्हिच दे आर सेइंग. इट अपीयर्स कि अर्थक्वेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है. यू कैन मेंशन द 2015 नेपाल अर्थक्वेक. यू कैन मेंशन द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भुज का अर्थक्वेक बहुत ही फेमस है 2001 का. 1997 में जबलपुर में अर्थक्वेक आया था. और जो स्मॉल ट्रेमर्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं जो लेस इंटेंसिटी के हैं, अगर हम रिएक्टर स्केल में देखें, दे आर पूरा जो बेल्ट है इंडिया की हिमालयन जोन की, वहां पे आते ही रहते हैं. तो यू कैन बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव गिवन एज ए कंक्लूसिव स्टेटमेंट. और यू कैन स्टार्ट like in old days, in school days type, you can start with the definition also. Earthquake क्या होता है? You can build upon that also. You can start with the definition that the earthquake is a what? Earthquake is a sudden and massive event which leads to a lot of disturbances. The causes are primarily the tectonic changes. जो प्लेट्स होती हैं उनका जो मूवमेंट होता है, जैसे इंडियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन जोन के थ्रू सबडक्ट हो रही है. बिकॉज ऑफ दैट यू हैव ए लॉट ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी अक्रॉस द इंडियन हिमालयन रीजन. तो बिकॉज ऑफ द मैसिव मूवमेंट ऑफ blocks and rocks in Earth's lithosphere, there is a massive rapid movement on the surface, जिसे हम earthquake कहते हैं. You can build upon the definition, and you can also build upon, as I said, you can build upon this argument. You can expand it by mentioning examples. Yes, you will agree with the examiner. Yes, the intensity and the frequency of earthquakes, particularly frequency, have been increasing over the period of time on Indian subcontinent. This is a time tested method of writing introduction. उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यस 59% ऑफ इंडिया का जो लैंड एरिया है, इट कम्स अंडर अर्थक्वेक प्रोन जोन. इट इज सब्जेक्टेड टू मॉडरेट टू सीवियर अर्थक्वेक. तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. फैक्ट्स को मेंशन करना इंट्रोडक्शन में इटसेल्फ इज ए गुड स्ट्रेटजी. Then you will come to the body part. Now we will talk about here in the second para, okay, despite of the fact that the frequency is increasing, we have substantial gaps in our mitigation strategy when it comes to earthquake. जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा अर्थक्वेक के साथ वो क्या होगा कि यहाँ पे अर्ली वार्निंग की हमारे पास चैलेंजेस हैं. अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है यहाँ पे इसके लिए हमारे पास वी हैव सीरियस चैलेंजेस. इन व्हाट वे? अर्ली वार्निंग इज पॉसिबल इन अर्थक्वेक. These days it is possible. These days it is possible because there are many pilot programs, pilot
स्टडीज हैव बीन टेकन प्लेस जहां पे एंड्रॉयड फोन्स को के माध्यम से रियल टाइम में अर्ली वार्निंग लोगों को दी जा रही है. सो एटलीस्ट 2 to 5 seconds का एक गैप उन्हें मिल रहा है टू रिस्पॉन्ड टू, विच इज a huge thing for earthquakes, because earthquakes among all the disasters is the toughest when it comes to early warning. तो अर्ली वार्निंग के लिए कई जगहों पे पायलट स्टडीज चल रही हैं, लेकिन इसका यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पाया है. सो दैट इज अ लैकुना दैट वी आर फेसिंग व्हेन इट कम्स टू अर्थक्वेक. इसके अलावा जो लैंड यूज प्लानिंग है, जो लैंड यूज प्लानिंग है, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं उनका, पर्टिकुलरली ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं, यहां पे माइक्रो लेवल पे जोन प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है. जहां पे भी कमर्शियल अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वहां पे माइक्रो जोनेशन मैपिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो जोनेशन मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मिसिंग इन इंडियन केस. ये एक एस्पेक्ट है जो कि गैप के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं. तीसरा पॉइंट यहां पे हम रेस कर सकते हैं कि भाई देयर इज ए प्रॉब्लम विथ आर इंस्टीट्यूशनल capability. Institutional means governments, central government, state governments, local bodies. Apart from it, variety of administrative जो institutions हैं, जैसे पुलिस हो गया, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल है, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैं जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स विच इज वेरी ओवर स्ट्रेस्ड, which is one of the best trained forces in the world when it comes to disaster response and rehabilitation. और जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं उनकी कैपेसिटी में स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो, यहाँ पे मिसिंग है चीजें. तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी समथिंग विच वी हैव टू बिल्ड कंटिन्यूअसली एज वी प्रोग्रेस. ये चीज दिमाग में रखनी है. देन यू कैन टॉक अबाउट, अपार्ट फ्रॉम दीज गैप्स, यू कैन टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which leads to substantial damage during earthquake is the collapse of the ill-designed, ill-engineered buildings. तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग कोड्स हैं जो कि बात करते हैं कि कैसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया में कैसे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का, आरसीसी का सिर्फ इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. इसके स्ट्रिक्ट वायलेशंस होते हैं. इट इज मोर ऑब्जर्व्ड इन ब्रीच देन इन प्रैक्टिस अदरेंस. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने बना हुआ है कि रेगुलेशंस हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता. फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं गैप्स में कि कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन mitigating such challenges. तो community awareness is something which is lacking. Community has to be prepared all the time. कंटिन्यूसली ड्रिल्स होते रहने चाहिए. कंटिन्यूसली जो ऑडिट्स हैं अर्थक्वेक रिलेटेड, सीस्मिक ऑडिट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो होते रहने चाहिए. ड्रिल्स, कैसे इवैक्यूएशन करना है कैजुअलिटी का, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे फर्स्ट एड देनी है लोगों को, ये सारी जो चीजें होती हैं. और अर्थक्वेक जब आए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वेयर टू गो, हाउ टू बिहेव, ये सारी चीजें अवेयरनेस के पार्ट में आती हैं, जो कि इंडिया में मिसिंग होती है बहुत ज्यादा. जब तक हम लोगों को अपने साथ में नहीं लेते, कोई भी पॉलिसी का इम्पैक्ट बड़े स्केल पे, मैसिव लेवल पे नहीं हो सकता. तो ये मोस्टली चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं. मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस which are there with earthquake management is coming from these points. And as I said, we have to respect the 200 word limit. तो मोस्ट जो पॉइंट्स हैं यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं. ये प्रॉब्लम है हमारी अर्थक्वेक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के अंदर. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बाय 2015, जब इस साल ये सवाल आया था, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी एक क्रिटिक हुआ करता था कि गवर्नमेंट इज नॉट एम्फेसाइजिंग ए लॉट ऑन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. तो वो भी एक एस्पेक्ट जो है वो रेस किया जाता था. लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है, अगर ये लेवल थोड़ा इसका ऊपर हो, रिएक्टर स्केल में 8 से ऊपर अगर अर्थक्वेक आया है, मेगा अर्थक्वेक जिन्हें हम कहते हैं, डैमेज इट कॉजेज सब्सटैंशियल. तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है. नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, इट कॉज्ड ए लॉट ऑफ डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिबिलिटेशन, और नेपाल की पूरी इकोनॉमी जो है वो रैक हो गई थी बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया था. हमने इंडिया का जो कोर एजेंडा है उसको यहाँ पे रखा कि ये गैप्स हैं. नाउ यू विल कंक्लूड द आंसर. I again and again I reiterate in this class कि always pay attention to this.
You can write the answer for such questions for in 500 words, in 1000 words also. बट यहाँ पे टास्क ये है कि जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट में हमको आंसर राइटिंग करनी है. This is the task that is there in front of you, because you will have paucity of time plus paucity of space also. तो 200 पेजेस 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस में उन दिनों सिर्फ 2 पेजेस आते थे मेंस के आंसर शीट्स के अंदर. तो स्पेस का भी शॉर्टेज होता है. तो उसी स्पेस के अंदर, उसी टाइम लिमिट के अंदर हमें आंसर राइटिंग करनी है. तो जो कोर पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, उन्हें दे दिए. नाउ कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूजन में ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मिटिगेशन strategies. How? By putting a lot of emphasis on institutional capacity building. पहली चीज. दूसरा, seismic zone planning, land use planning is very important. तीसरा, investing in early warning systems. And अगर हम देखें इसको आगे ले जाके अर्थक्वेक में, तो कम्युनिटी अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट ये बढ़ाना जरूरी है. तो ये बातें यहां पे की जा सकती है कंक्लूजन के अंदर. जो रेगुलेशंस हैं जैसे बिल्डिंग कोड्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना भी एक एजेंडे का हिस्सा हो सकता है. बट कंक्लूजन जनरली 1 या 2 सेंटेंसेस का ही होता है. कंक्लूजन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इट शुड बी वेरी क्रिप्स एंड कंसाइज, इट शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड, इट शुड नॉट बी ए समरी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन अबव. तो ये होता है कंक्लूजन, एंड इट शुड गिव ए फाइनलिटी, ए सेंस ऑफ फाइनलिटी टू द आंसर. आंसर लगना चाहिए कि कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया जब कंक्लूजन हमने लिख दिया उसका. इस तरीके से कंक्लूजन हम लिखे जाते हैं तो दे विल ऑब्वियसली हैव ग्रेटर इम्पैक्ट. I hope all of you understood the demand of the question. You can also join me on my Telegram channel. I'll meet you again whenever my turns comes up again on this one PYQAD series. Thank you for giving me your time.